बहुत ज़्यादा So I do the show on Red FM 12 से 3 कान फाड़ के सुनो खत्म let's move on अगला Her badness. Summer Shmita. Yeah. He's an Indian actor and comedian. He has starred in Indian and international movies, TV soaps and theatre musicals. He is best known for Mummy Auntie's role. So give him a big round of applause. So now over to Pankaj. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bindu. First of all, I'm thankful to Mummy Auntie and Muffler Man sitting to my right, RJ Abhilash from Red FM. So the topic today is about losing control. But I request all of you not to lose control before we end this session. We'll have a round of question and answers, but after the discussion is over. So this is lose control, the MC, BC and all of that. And the context is the unbridled language in social media, the kind of language we use in social media. जिस तरह की भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक पर, जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई सेंसर बोर्ड की शुरुआत नहीं हुई है। उसमें भी दो बातें होती हैं, एक फॉर में, एक अगेंस्ट में। फॉर में जहाँ रोका जाएगा, कहते हैं वहाँ क्रिएटिविटी को रोका जा रहा है, और जो अगेंस्ट में है उनका कहना है कि सोशल मीडिया आवारा मीडिया है, जिम्मेदारियाँ नहीं लेता है अपनी खुद की। तो हम लोग विल टॉक ऑन ऑल एस्पेक्ट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू मम्मी आंटी, व्हाट्स हिज टेक ऑन द टॉपिक। क्या उनको लगता है कि सोशल मीडिया आवारा मीडिया है, और अगर ये आवारगी करना क्रिएटिव है तो वो इसे कैसे देखते हैं? Well, frankly, hi everybody, and thank you so much for having me over. See, there is viewership for everything India is serving right now. तरह-तरह का social media के ऊपर programs आ रहे हैं, whether it's related to comedy, whether it's related to serials or web series and everything. I won't say that it's bad, very frankly, but personal level, I don't believe in that kind of loose talks on social media. I still believe in the old school where I have seen, I'm talking about the comedy level, where I've seen the Hrishikesh Mukherjee movies, a very clean-hearted comedy, made sense, content was there, people used to enjoy. And I myself is doing a very clean comedy which people can relate, from 3-year-old to 80-year-old lady. So that's my take on that. It's not necessary that you have to use the foul language to impress people or to make people laugh. That's my take. So it can be entertaining without being shallow. Exactly. What's your take, Abhilash? आप क्या समझते हैं? क्या पंकज मतलब it's I think social media is a very personal media जहाँ पे you have Mummy Auntie or you have Muffler Man or you have 10 different characters. Whatever content you're putting out right now, everyone has a smartphone. सबका स्मार्टफोन है मेरे ख्याल से। इस वक्त जो आपके Facebook पे 2000-2500 दोस्त हैं, right now you can go live and say whatever you want, and they'll listen to you, they'll see you. अब वो कंटेंट आप क्या दे सकते हैं is the basic filter. क्या आप फाउल लैंग्वेज के बिना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? अगर हाँ तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है you can create that kind of content जो फाउल होकर भी ऑफेंसिव नहीं होगा, fair enough. So it's a very personal thing. मुझे लगता है कि I think yes, if you can do something without using that kind of language, क्योंकि हम लोग किस कल्चर में हैं? हम उस कल्चर में जहाँ पे बचपन में अगर छोटा बच्चा अगर अपने घर पे कभी साले बोले थप्पड़ पड़ता था, ये ऐसी भाषा यूज नहीं करना। हम लोग पले बढ़े उस तरह के एनवायरनमेंट में। So depends कि सेगमेंट कौन सा है। और नहीं, ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो हमेशा बाप भले ही बाहर जाके कुछ भी करे, हमारी सोसाइटी में बच्चों पर जो कंट्रोल है वो इसी वजह से क्योंकि वो हमारी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से सही है। गाली गलौज हमारी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से सही नहीं है। सो हम किस चीज को कूल बना रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वो जो 2000 लोग हैं वो क्या सभी एक जैसे हैं? क्या उन सबको एक ही चीज पसंद आती है? दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि मेरे लिए बे, अबे, साले संबोधन हो सकता है, किसी के लिए गाली हो सकती है, एग्जैक्टली, किसी के लिए गाली हो सकती है। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर कैटरिंग टू?
What do you think on that? See, आज आप किसी को साला बोलते हैं वो इतना बुरा शायद ना भी माने, कंडीशनिंग के लेकिन 20-25 साल पहले साला वाज अ बिग थिंग। जी। अगर आज आप किसी गाली को आप आजकल आम अगर आप कोई वेब सीरीज या कुछ देते हैं, इट्स वेरी इजीली, डोंट माइंड माय लैंग्वेज, पीपल अरे उसकी लेडी इसकी लेडी, हो सकता है 20 साल के बाद ये भी इतना कैजुअल हो जाए। अब की जनरेशन आम ये बातें बोल रही है। हम लोगों ने गालियां, मेरे पर भी बात करो, मैंने गालियां अगर सुनी थी, सो आई मस्ट बी लाइक 15 और 16 ईयर, आई वाज अ डम किड। आज के बच्चे तो छोटे-छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं। So it's again, but value system is there. But again, I stick to my words. I still believe in a very clean-hearted content. I know I can present to you a good, healthy humor. That's what I believe in. The way in the entertainment industry, पुरानी फिल्मों में देख के प्यार हो जाता था, और अब देवडी में अनुराग के लड़की साइकिल पे गद्दे लेके खेतों तक आ जाती है डेट के लिए. Things change. What's your take? क्यों हो रहा है? मतलब मुझे लगता है कि अभी भी when you talk about comedy right now, you see a lot of abuses in comedy. मतलब कहाँ गाली लाफ्टर, because वो shock value देती है आपके सिस्टम में. This is the only thing. हाँ, मतलब everything has a formula. आप जब लिखते हैं तो आपके पास एक formula होता है ना. आपका हीरो कुछ करता है, आपकी हीरोइन कुछ करती है, उसकी लाइफ में कुछ होता है, सैलरी कुछ. वो combination आप करते हैं, then you lead to a result. Similarly, जो भी हम रेडियो पर बोलते हैं या जब हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, everything has a formula. अब वो फॉर्मूला हो सकता है कि गाली गलौज में जाए, वो फॉर्मूला हो सकता है कि इंटेलिजेंट कॉमेडी करे. फॉर इंस्टेंस मफलर मैन जो कैरेक्टर मैं डिजिटल पर करता हूँ, मैंने आज तक कभी गाली गलौज नहीं यूज किया. Even in the case of your character. Yeah, Pummy Aunty is clean. So there is a clean comedy which can be served, but there is a lot of space. So nowadays what is happening? People are getting into a very quick fame thing. And quick fame जो मैं मानता हूँ, वो youngsters की जल्दी आता है. Youngsters को आप कैसे प्रभावित करेंगे? It's like अरे मैंने ये किया, अरे ये किया, वो किया. So people laugh. For them now, what is happening for them? For lots of youngsters, I have talked. For them, it's very cool. गालियाँ देना, but they really don't know what real humor is or real content is. So how do you When differentiate? you see the entire landscape of this one web series, इनको सबसे revolutionizing यही लग रहा है कि वहाँ गालियाँ दे सकते हैं, सिगरेट पीते हुए बातें कर सकते हैं. There is no censor, और यही सबसे cool लग रहा है. हाँ, पर सेंसरशिप में एक्चुअली मतलब what आपकी सोसाइटी में आप किस चीज को कूल बना रहे हो, आपको ये डिफाइन अगर आपने कर लिया तो आपको ये डिस्कशन करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. When you talk कि smoking is cool, तेरे को पता है बड़ी फील आती है भाई जब मतलब दो कश खींचते ना, ओए होए. और हमारे डैड लोगों के टाइम पर बोलते थे सिगरेट जब बाइक पर हीरो पीता है तो वो कूल हो जाता है. और आज की तारीख में आपको हर बार जब आपका एक्टर सिगरेट पीता है नीचे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स. सो व्हाट you are making cool is something जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. But sometimes what you are talking about smoking especially or drinking on screen or something, sometimes it's also the character which is built up like that. So I don't find any offensive things in that. You know, as an actor, maybe I want to smoke that time. That gives me the kick for that particular scene. That's not offensive. I think so. What we are talking is the language. But then going by this logic, and I'm not for abuses at all. Yeah. But going by this logic, हो सकता है वो character गाली गलौज करता हो. So are you guys? Is this a justification? I don't for social media. I am for it 100%. Censorship की तो आप बात छोड़ दीजिए. आजकल तो हर चीज पे censorship हो रही है. अच्छी movies के ऊपर censorship का लग रहा है. They are not doing their work. What they are doing, trying to be a director, which I am totally against that. But yes, censorship घर के ऊपर social media पे, I think so. It's the only माँ बाप who can keep a track what their kids are watching. That's the only censorship. Also of value where they can make their own decisions. कि क्या देखना है क्या नहीं, because there is no one to filter that. And seriously, I'm nobody to tell you कि आप ये गलत देख रहे हैं. You know, this is what you like. You take it as a human. यार अच्छा है, 15-20 मिनट का एपिसोड है, अच्छा है, गाली गलौज मजा आता है, चलो मैं शेयर करता हूँ. That's it. But I feel the trickiest part is where to draw that line. Creativity has no line. No lines. Creativity तो जब has आप no सेंसर के फेवर में हो, don't you think it will
check the बट पंकज आपको देखना पड़ेगा, आप जब सेंसरशिप की बात करते हो, आपका फोन आपके घर पे हो सकता है 12 साल का एक बच्चा भी एक्सेस कर रहा है। Absolutely. और इसीलिए मैंने दो चीजें कही हैं, व्हाट इज कूल एंड व्हाट इज दैट फिल्टर यू हैव इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में फिल्टर आपका 12 साल का बच्चा है, would you want him to watch it? If yes, perfectly fine, go ahead. पर अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका 12 साल का बच्चा आपसे आके MC, DC and all that में बातचीत करे, you will have to keep a check to every media, every platform जहाँ पर कि आप जनता तक पहुँच सकते हो, उसमें आपको चेक रखने होंगे। और ये मीडिया भी बहुत नया, जब रेडियो हम लोगों के लिए शुरू हुआ था, and I'm talking about 7-8 years, radio is still in its nascent stage. स्टार्टिंग में हमें ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से उनको पता नहीं था कि हमारे पे चेक कैसे रखें। We were called frivolous people. Radio jockeys are frivolous people. वो लोग कुछ भी बोलते हैं रेडियो पर जाकर। Now we have checks in place, and it happens with every media. Television जब स्टार्टिंग में आया उस पर चेक लगने शुरू हुए, जब न्यूज चैनल्स 24 आ रहे हुए उस पर चेक लगने शुरू हुए। अब जब मीडिया, आज सुबह की स्टोरी है, फेसबुक पर क्लियरली कह दिया गया है कि अगर चाइल्ड अब्यूज का कोई वीडियो जाता है सो उनको चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, ट्विटर उससे बिजनेस कर रहा है। सो अगर किसी कोई कंटेंट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, वो आई एम श्योर अगर वो इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, वो चेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा YouTube पर ही है। The second question that comes to my mind is, क्या हमारे अंदर subconsciously this wish, this ख्वाहिश is there to go for that? क्योंकि the number of eyeballs coming to those stuff, the number of clicks you get, जो व्यूज की संख्या, उनको देखते हुए लगता है कि क्या हमारे सबकॉन्शियस में वो बात है, हमें वो बहुत मजा आता है देखने में। 100% बड़ी खुशी होती है। क्योंकि व्यूज तो आजकल खरीदे जाते हैं, तो उसका क्या रिकॉर्ड है? आप सिंपल, आप माता रानी की फोटो लेके भी 5 लाख व्यू ले सकते हैं, आप ABCD करके भी 5 लाख व्यू ले सकते हैं, और आप क्लीन कॉमेडी करके भी 5 लाख व्यूज ले सकते हैं। उसका क्या खरीद सकता है, खरीद ले। जो खरीद सकता है उसका कोई है ही नहीं, बट आप वो तो तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ कहलाती है। फेसबुक जो पेज आप बनाते हैं उसके नीचे एक क्लिक होता है जिसमें आप डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी ऑर्गेनिक पेड व्यूज क्लियरली दिखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। सो आप कौन से व्यूज खरीद रहे हैं और आप कौन से व्यूज नहीं खरीद रहे हैं, वो तो आपको खुद को पता है। वो क्लिक बता देता है कि आपने कितने व्यूज खरीदे। अब तो इनफैक्ट वेबसाइट्स आ गई जो आपको क्लिक्स का नंबर बता देता है जो आपने एट द सेम टाइम जिन चीजों के लिए मना किया जाता है, हाँ, वो करने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, मतलब अब वो आपके ऊपर से आप क्रिमिनल, अब तो फिर क्रिमिनल्स को आप अप्रूव करना शुरू कर देंगे, इसको मजा आता है जेब काटने। उतने एक्सट्रीम्स में आप बचे आमतौर पे। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, आप वहाँ पर वीडियोस बना क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली आप फेम चाहते हैं, ऑब्वियसली आप नंबर्स चाहते हैं, ऑब्वियसली आप ट्रैक्शन चाहते हैं। द इंस्टेंट फेम, human psychology. Exactly. Instant fame, yes. Lots of people, क्या होता है, एक दूसरे को देखकर हो जाता है। उस बंदे, किसी ने उस तरह से आया, जब तक मेरी माँ से मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हुई कि ये तू कर क्या रहा है, तब तक वो वायरल हो चुका था। She was getting messages from UK, America and everybody. So by the time I'm like, Mama, हिट हो चुका है, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। So I had no clue. I really didn't know what I was doing. So वो obviously जैसे बोलते हैं कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं उसको प्लान बहुत करते हैं, और हिंदुस्तानी तो सिर्फ प्लान ही करता रहता है, एग्जीक्यूट करता ही नहीं। सो विद डिजिटल प्लेटफॉर्म आई थिंक दैट एग्जीक्यूशन इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई वोटेड फॉर, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, लेकिन मैंने केजरीवाल को 2 बार वोट दिया था, विधानसभा में और लोकसभा में। यस, आई एम अ फूल, सॉरी सर, हंसो मत। उसके बाद मैं भाई मैं दिल्ली का लड़का, मैं देख रहा हूँ मेरा सीएम धरने पर बैठ रखा है, उसके ऊपर लोग जूता मार रहे हैं, उसको लोग थप्पड़ मार रहे हैं, और जिसके साथ वो, सो आई वाज होस्टिंग द मॉर्निंग शो इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड आई वाज प्रो अन्ना हजारे मूव व्हेन दिस एंटायर थिंग वाज हैपनिंग। ये केजरीवाल का पूरा बवाल जब शुरू हुआ, आई थॉट 2 वोट तो वेस्ट कर लिए, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो आई क्रिएटेड दिस कैरेक्टर, और हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फोन लिया, मेरे 2 दोस्त थे रेडियो स्टेशन, रेडियो वाले पागल होते हैं, तो हमने कहा क्या करेंगे, उसने कहा कि मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ तो बोलना शुरू कर। तो उस टाइम तो आपकी टोपी है ना दिल्ली में बहुत बटी थी, यहाँ तो इतनी बटेंगी, पर तो मफलर लपेट के टोपी पहन के एंड वी स्टार्टेड। तो एक बड़ा अच्छा टेक मुझसे पूछा गया कि आपको लोग थप्पड़ मार के क्यों जाते हैं? तो मफलर मैन ने कहा नहीं जी, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये मेरे फॉलोअर है। मैं कहता हूँ धरना धरना, इनको लगता है धरना धरना कर देते।
So that's how the entire thing started. And after first video, मतलब मुझे 10 दिन नहीं लगे, मैंने पहला वीडियो डाला YouTube पर. उस टाइम पर Facebook पर वीडियोस पोस्ट होने शुरू नहीं हुए थे, जो अभी हो गया है. और इस वजह से YouTube को बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एल्गोरिथम Facebook रोज चेंज कर रहा है. So every viral which is happening has a technical side to it. हम लोग यूजुअली सिर्फ क्रिएटिव कहते रहते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिव, देयर इज अ टेक्निकल साइड टू इट. जस्टिन बीबर हु इज कमिंग टू मुंबई, सबसे बड़ा स्कैम यूट्यूब के साथ मिलकर जस्टिन बीबर ने किया था. और जब वो पता लगा कि इसने इतने डॉलर्स लेकर इतने हिट्स खरीदे थ्रू बॉट्स, यू नो बॉट्स, रोबोट्स व्हिच आर नॉट जेन्युइन क्लिक्स, बाद में पता लगा अभी कोई वायरल सेंसेशन नहीं है, ये तो सारे हिट्स खरीदे हुए हैं. सो एवरीथिंग हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता. फॉर इंस्टेंस बाइंग हिट्स तो ऐसी चीज है जो आप हजारों दुकानें खुल रखी हैं. अभी 3,700 करोड़ का एक पूरा रैकेट पकड़ा गया है, if you know, in UP. So What has been your first moment of faith जब आपने ये देखा अपना वायरल हो गया, सब कुछ प्रॉपर्टी बड़ी बनी, and then it inspired you to carry on with that. Exactly. So the first big fan moment. The first big fan moment was when Mr. Rishi Kapoor tweeted about me. Wow. And he was looking for me on Twitter. He was like, he kaun hai? Because of course I'm not known. So he was like, he kaun hai? Who is this guy? Does anybody know about his whereabouts? Oh. So then of course, and I was very chilling at home and my friend called me. तू कहाँ पर है? तू कहाँ पर है? मैं घर पे बैठा हो के गया. ट्विटर पे चल जल्दी जा, ऋषि कपूर जी तेरे को ढूंढ रहे हैं. मैंने क्या कर दिया? So I was looking for, मैंने उनको follow भी नहीं कर रहा था. तो मैं जाकर ढूंढ रहा, and उन्होंने then of course मैंने कहा hello sir, how are you? I'm your fan. He like, you are doing great show and blah, and tomorrow if you ever plan to make Pammi Aunty a talk show, you should name it as Working My Blessings. Brilliant, a very humble person, he did that. And अभी recently जब मेरे 100 episodes पूरे हुए, तो किसी इंटरव्यू में मैंने बोला I owe my success to Rishi Kapoor. And again, he probably read that newspaper, he tweeted again, he's like, nobody can make anybody's career. It was Sumir's hard work and his passion which got him there. Wow. What a brilliant thing to say. Quite inspiring. Such a good gesture from the legend. And what has been your first moment of fame? किसी ने पिटाई किया है? एक्चुअली होने वाला था. सो मैं रेडियो चौकी था विद हिंदुस्तान टाइम्स रेडियो स्टेशन व्हिच इज Fever 104, द मॉर्निंग शो. मफलर मैन ऑलरेडी पागलपना मचा रखा था और हमें बोल रहे थे गधे हो तुम लोग, तुम रुक क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था केजरीवाल का. सो हार्डकोर फॉलोअर्स उनके वहां पर. Did you get trolled for that? अरे भैया बवाल तरीके Did you से get धमकीज? गर्दन काट के ऐसे गधे का चेहरा लगा के. क्या बात है? हाँ अरे बहुत पागल है. तो उस टाइम पर केजरीवाल सर हैड टू कम टू HT हाउस. तो HT हाउस में आते हैं. अभी एक आपने देखी होगी चूरन नोट की स्टोरी बड़ी चल रही है, 2000 के नकली नोट. वो स्टोरी जिसने ब्रेक किया समर, उसको कहा गया कि तो केजरीवाल बिकॉज उसकी आप बीट थी तो उसको कहा कि ये मफलर मैन तुम्हारे यहाँ पर है, उसको बुलाओगे? तो मुझे कहा गया कि नीचे आएगा. एंड आई वाज सो स्कैर्ड. मुझे लगा ये तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी लोग आज चांटे मारने वाले हैं. सो मैं नहीं गया. बट नेक्स्ट डे व्हेन आई सॉ हर अखबार में there was a news on Muffler Man कि this guy trolled Muffler Man so hard that you it's shocking. तो that entire trend it's और वो आज तक चल रहा है. I also got to know that Mr. Kejriwal was asking someone कि ऐसे बोलता हूँ मैं, looking at his videos. ऐसे बोलता हूँ. So we are having a great discussion, but we'll have to start taking some questions if you have for Sumir because he has to go. And we started it late, and he has been nominated for an award, some digital talent, digital media award. So he has to go. So if you have any question for Sumir, we can take it, and I and Avinash can then continue for some more time. कोई सवाल हो पम्मी आंटी से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वो डांटेंगी नहीं. अरे पूछ लो, किसी ने कुछ पूछा? Well, I don't have any questions. सारे सवाल जो है आपने अपने वक्तव्य में शांत कर दिए इनके. So we are quite thankful to Sumir for being with us. काफी टाइट स्केड्यूल में बीच में हमारा शेड्यूल बदल गया. Thank you so much. We have a gift for you. I love it. तो इनको तोहफा Parik sir, please come. आइए प्लीज इनको तोहफा दे दीजिए.
gentlemen, please put your hands together. Thank you for your time. इनके साथ अभी कॉन्वर्सेशन जारी अभी जारी जारी है। है। इसके बाद देखेंगे। अच्छा ठीक है। Thank you. Thanks, thank you. मफलर मैन को अब इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये भी चले जाते। So so this incident was there. I heard of it कि Mr. Kejriwal was asking his people कि ऐसे बोलता हूँ मैं, तो you got to know about it? हाँ मतलब ये डिजिटल टीम के साथ एक्चुअली उनका डिस्कशन हो रहा था। जब उनकी डिजिटल टीम को ये वीडियोस वगैरह आए, देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट। लेकिन आई थिंक जो एक आजकल एक फॉर्म पहले होता था कि मुझे वायरल हो गया है और अब हो गया है मेरा वीडियो वायरल हो गया है। So I think everyone who's sitting in this room can create a video and it can go viral because all you need to do is create a character digitally. अगर आप ऑनलाइन में एक कैरेक्टर क्रिएट कर देते हो जो यूनिक है, which is not inspired, and when I say inspired, it has to be your thing. My thing is also inspired. Kejriwal said. Now my question is, Abhilash, what is the impact of the characters you play, your real life character, on real Abhilash? उसका hangover of the character कितना रहता है? Have you politically started ridiculing Kejriwal just because you do that? इसका कुछ होता है? What's your psyche on मतलब ये बिल्कुल डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज आई एम अ रेडियो जॉकी, आई डू लॉट ऑफ टीवी। मेरे को एक चीज समझ में आई कि डिजिटल और बाकी मीडियाज का डिफरेंस ये दैट यू डोंट लिव दैट कैरेक्टर फॉर दैट लॉन्ग। अगर आप टीवी कर रहे हो या मूवीज कर रहे हो, सो आपको एक बड़े स्पैन में यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर। Whereas with digital media, जितने वक्त तक वो आपका फोन ऑन है, आपने वो किया and you end it there. But yes, at times आप partial तो हो ही जाते हो। तो partial तो होता है। मैंने शायद MTV पे कहीं देखा था, you were playing an auto वाला guy. So do you start behaving like that? After some For that while, yes. नहीं उसके बाद नहीं, मेरे को सुबह शो करना होता है रोज आके ऑटो वाला So बोलिए। ये जो frequent shift of characters that you play, उसका अभिलाष थपलियाल, I think, if I'm not wrong, Yeah. the second name. अभिलाष थपलियाल as a person पे कितना hangover रहता है? पंकज वो उल्टा है, मतलब अभिलाष है तो वो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स की वजह से अभिलाष नहीं, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू प्ले देम। और ये जितने कैरेक्टर्स हैं ये इतने फन है दैट ऑल यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ फोकस करना है लोगों पर। जैसे वो बंदा तब से फोन के अंदर है, उसको अभी भी नहीं पता उसके बारे में बात हो रही है। यू ऑब्जर्व द कैरेक्टर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने क्या हो रहा है, बट वो अपने फोन को देखता रहता है। और दैट गाय जिसको ये फर्क नहीं पड़ता है बात क्या हो रही है, बट उसकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है उसको। We have characters here. Everyone, sir, perfect sir. That's a character for us. तो अभी सिर्फ इन characters क्या को पता सर ट्वीट कर रहे हो तुम? 100% सर केजरीवाल को टैग मत कीजिए। He'll win soup. Otherwise, good. तो काफी impact रहता है, but you switch and then you You have to, Pankaj, you have to. मतलब you can't stay in that one mold. और thanks to Kejriwal sir कि मफलर मैन शुरू हुआ and I got my first movie. So which all politicians you are looking at for inspiration? Modi ji not for sure because you know the reason. But फिलहाल और एक और चीज मैंने देखी है, when I talk about मफलर मैन, इतनी बड़ी डिजिटल स्पेस में there is just one political satire. There is just one political satire. मतलब आज and that's why I think NCPC is it's not relevant. It's not relevant because there are so many spaces to take. It's just that It's changing. Things are evolving over there also. I doubt that. मतलब मुझे दिखते नहीं है बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं I can name characters जो So that you should be thankful to Mr. Arvind Kejriwal. absolutely I am. Because no other politician is being mocked. मैं हर एक चीज कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ पंकज कि अगर लालू प्रसाद यादव के बाद कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर आया है जिसमें कि इतना फ्लेवर है, जिसमें इतना फन है, इट्स अरविंद केजरीवाल। Lalu has an advantage. He is an actor himself, so you don't have to do that. He can do it on his own. So now we can take questions, and I can see a hand Yes sir. in the second row. क्या है सवाल? Yeah, so it's yeah. So it's about. What's your name? So my name is also Pankaj. Okay. So hello. Yeah. So my question is about Rahul Gandhi. So like
so we can like kind of you are doing a stuff on Arvind Kejriwal. Why not? Why not? Target Rahul Gandhi. नहीं it's on. I hope it's not Congress doing this. तो देख मजाक उसका उड़ता है जिसके पास कंटेंट है, जो खुद मजाक कर रहा है उसका क्या मजाक उड़ाए? तो मेरा सवाल यही था कि जो खुद एक मजाक है तो क्या उसके ऊपर कुछ सीरियस चीज बननी चाहिए? हाँ ट्राई करना। I won't. You can go sure. There's a question. Udhar piche se someone was there. Yeah. Please introduce yourself before you ask the question. हेलो सर, आई एम अतुल। मेरा क्वेश्चन ये था, आपने डिस्कशन में कहा था कि मैं क्लियर कॉमेडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो वेब सीरीज में अगर कोई दिखा रहा है कि 5 लोग सिगरेट पी रहे या फिर कोई गाली दे रहे तो उसमें बुरा क्या है? और एक सर जब AI वीडियोस आया था तो सिचुएशन आई थी कि उसे बैन करना पड़ा था। सारे सेलिब्रिटीज है उसके खिलाफ बोला था उन्होंने। तो वो सिचुएशन क्यों आई? अब वो किसी ने आपको फोर्स नहीं है कि आप उसे देखो। अगर आपको पसंद आए तो आप उसे देखो, पसंद नहीं आए तो मत देखो। तो वो सिचुएशन क्यों है कि उसे बैन करना पड़ेगा? तो तुम्हें पता है कि केस क्या था पूरा AIB रोस्ट का? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। AIB रोस्ट का केस ये नहीं था कि AIB रोस्ट क्यों हुआ। AIB रोस्ट के ऊपर केस ये था कि AIB रोस्ट के जो टिकट्स थे वो एक इवेंट के अंदर थे which is happening यहाँ पर। It was not supposed to be on YouTube. on YouTube because there's no control over social media. तो अगर the same question तुम्हारा छोटा अगर कोई भाई हुआ and if you are okay, it's a very personal thing right now. In future, obviously, Every family is not okay. Yeah, हाँ मतलब if you think you are okay with it कि तुम्हारे 12 साल के बच्चा भाई घर पे वो कंटेंट एक्सेस करता है, it's perfectly fine. मतलब illegal तो नहीं है ना भाई YouTube देखना, तो it's perfectly fine. But I think it's a very personal thing because this ये आप फैमिली के साथ नहीं देखते, ये आप ऐसे देखते हो, किसी को देखकर देखते हो। एक सवाल है यहाँ। सर नमस्कार, अनंत विजय नाम है। यहाँ सर, मैं इस वक्त मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, मुझे लगता है आप किसी और को देख रहे हैं। तो अरविंद हमारे मित्र हैं, एक कुछ ऐसा बता दीजिए जिसको अभी तक आपने नहीं दिखाया जो मैं उनको जाके बता सकूं कि अगले एपिसोड में ये आने वाला है। प्लीज। मफलर मैन का। सर यहाँ बता दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बहुत सारा। No, but we are coming up with one video with a big Bollywood celebrity which will be out soon, sir. Muffler Man के साथ। So सर जब आएगा तो हम बताएंगे, but it's going to be hilarious. तो आप सर को फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, you can tag him. 100% sir. First video you'll be the first person to know. Oh, thank you. Yeah. Any other? Actually, you have a question. So there has been a debate going on about the rap culture. So they have a lot of abuses in their rapping culture. So it has been promoted a lot on social media platforms like YouTube and everything. So the debate is children are learning the raps and like their language has been the MCBC language that we are talking about. And so there have been protests going on regarding like should the children be exposed to these contents. So where do you think the thin line should be drawn? And but like, see, I was in school at that time. Honey Singh's Volume 1, everybody had it on their hand. Like, so like. Which Honey Singh said कि उसने गाया ही नहीं। Yeah, and also about the Honey Singh's Char Bottle Vodka, he said he just got inspired by a man picking up 4 bottles on the road. Where else it has other meanings too. Like, Yeah. so where do you draw the thin line for that? So see, rap is a completely different thing. When you look at rap, what is rap? Rhythm and poetry is rap. मतलब किसी को पता भी नहीं होगा, तुम बोलोगे rap क्या है, तो RAP rhythm and poetry is rap. And rap started क्योंकि आपके अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे अफ्रीकन से जिन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू किया और अपने म्यूजिक के थ्रू उन्होंने बातें करनी शुरू की। उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे कि वो क्रिएट कर पाए, वो तुम्हें बीट सुनाई दे रही है और उस पे वो करेगा कुछ। सबसे पहले रिवोल्यूशनरी सॉन्ग्स और वो सब रैप में ही शुरू। देशभक्ति के ठीक है रैप्स आने लगे। तो अब रैप के साथ चीज ये कि जो भी अभी तुम रैप देख रहे हो वो डबल मीनिंग हो सकता है, बट उसमें गाली नहीं हो सकती। रीजन ये है कि वो टेलीविजन पर आ रहा है या फिर मूवीज में सुनाई दे रहा है, और जैसे ही वो टीवी या मूवीज में आता है या रेडियो पे सुनाई देता है, सेंसरशिप उस पर लग जाती है। सो अभी तुम्हें डबल मीनिंग सुनाई दे सकता है रैप कि तेरी कह के लूंगा, है ना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, साड़ी के पास, व्हाट है, उसमें तुम्हें 2 मतलब समझ आ सकते हैं, बट उसमें ऐसा कंटेंट डायरेक्ट कभी नहीं दिखेगा तुम्हें। और जब आरोप लगे तो आप कह दीजिए कि we see what we want to see.
दैट मीन्स आपकी नियत में खोट है, हमने तो ठीक बात की है। So with this हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। कोई और सवाल तो नहीं बचा किसी के मन में? You can tweet अभिलाष और message him I think. और thank you for being such a nice audience. Thank you for being part of Little Press and thank you अभिलाष. And कल शो पे आप मेरा नाम भी बोलना, Little Press का भी नाम बोलना। Thank you so much. Thank you, thanks a lot. Thank you, Abhilash. Alex sir, please come and felicitate them. Let's hear a big round of applause for them.